under consumer protection, right? And the government of our country launched different acts relating to the consumer protection for protecting the interest of the consumer from the different unfair trade practice and hazardous goods and defective goods, right? And for this purpose, government launched it. Okay, and now we are discussing complete chapter of consumer protection in this video. So I am starting from what are the rights of the consumer. First of all, the first right is rights of safety. The product which you are getting, the product which the consumer is getting, that should be safe for the society. Next, right to be informed, यानी कि that particular businessman will provide the necessary information regarding the product and regarding the use of the product. Right, next one is the right to be heard. Whenever there will be any defect or any deficiency in the product, and if you are making complaint, immediately you should be heard by that person, entertained by that person, and remove or try to solve the problem. Next one is the right to choose. You are having right to select your product as per your requirement or convenience. Nobody can force you to purchase anything. Next is the right to consumer education. Means whenever you are going for the purchase of any product, that businessman will not only provide you information, that is the right to be informed. Here the consumer should be educated. Okay, what are the rights and what are the responsibilities and where they can file the complaint. This is also your right. Okay, it will be done by the government. The right to seek redressal, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट फोरम होता है, और इन्फॉर्म होता है आपका कौन सा, नेशनल फोरम. Okay, so right to seek redressal, that we will discuss later. Right to seek redressal यानी कि आपकी जो भी grievances है उनको immediately sort out किया जाए दोस्तों. Okay, and in this video we are also discussing the responsibility of a consumer. As a consumer, आपकी भी कुछ responsibilities बनती हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है. पहला, insist for cash memo. Whenever you are going for purchase any product from the market, you should ask cash memo from the shopkeeper, right? Next is the, you must file complaint if there is any problem or if the goods is hazardous or unsafe for you and if any kind of defect is there in that condition. Immediately you should file the complaint of that particular product, right? Next one is the must exercise the right. You should exercise your rights, which we have already discussed, right? In each and every condition, use product safely. Means this is your responsibility that you should use the product very safe manner. You should apply all the precautions which is given on that particular product with the booklet. And next is given here, complete knowledge about the market. ये आपकी responsibility है. You should get the complete knowledge about the product and market. ये आपको पता करना पड़ेगा, आपको कोई बताने नहीं आएगा. हो सकता है कई फोरम्स हैं, चैनल है, उनके थ्रू आपको सारी जानकारी दी जाती है. क्वालिटी कॉन्शियस, यू शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट. जस्ट लाइक चाइना का प्रोडक्ट खरीद लिया, ना कोई गारंटी है ना कोई वारंटी है, तो उसका नेचुरल सी बात है कि अगर आपका प्रोडक्ट गार्डियस होगा तो इन दैट केस आप कोई कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर पाएंगे. इफ़ यू आर आस्किंग फॉर द कैश मेमो, तो कैश मेमो अगर होगा तभी तो फाइल कर पाओगे आप कंप्लेंट. तो
क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए आपको। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाई एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कंप्लेंट। क्यों कंप्लेंट करते हैं हम? अरे छोटी सी बात है, हम मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो कंप्लेंट क्यों की जाती है? पहली चीज़ है कि अगर आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट है तो आप कंप्लेंट करेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर प्रोडक्ट आपका नुकसानदायक है, हैजार्डियस फॉर द कंज्यूमर, नुकसानदायक है, खतरनाक है, तो आप करेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है अगर आपसे एक्सेस प्राइस ली जाती है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर अगर आपसे चार्ज किया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इमीडिएटली आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट को। एक ये भी रीजन हो सकता है। अगला है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपके साथ किसी भी तरीके की कोई ब्लैक मार्केटिंग का मैटर हो, है ना, ओवर प्राइसिंग का मैटर हो, दैट शुड बी, आपको फोर्स किया गया हो परचेज करने के लिए, तो ये आपके रीजन है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कहाँ जाके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सीक रेजिस्ट्रेशन एजेंसी, कैसे, कौन कौन सी एजेंसी है? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट फोरम, यहाँ पर आपके 20 लाख तक के केस सॉल्व होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख से ऊपर के केस सॉल्व नहीं होते, 20 लाख रुपए तक के केस का सॉल्यूशन डिस्ट्रिक्ट फोरम में होता है, और 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के केस का सॉल्यूशन होता है स्टेट फोरम में। और जब आते हैं नेशनल फोरम पर, तो नेशनल फोरम में जाते हैं तो 1 करोड़ से लेके ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर के केसेस को हम नेशनल फोरम में सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या फायदा है इसका? पहली चीज़ है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म फायदा उठाना है, तो आपको कंज्यूमर को ध्यान में रखना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेकंड नंबर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द सोसाइटी, सो यू शुड कलेक्ट each and every resource from the society we are collecting, right? So this is our social responsibility. If you are getting everything from the society, so you should also think about the consumer and society. Moral justification, सही चीज बेचना है, what is right and what is wrong, इस चीज को ध्यान में रख के बिजनेस करना है आपको। और कंज्यूमर का ध्यान रखना हर एक बिजनेसमैन और बिजनेस की जिम्मेदारी है। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से, जैसे आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इन सबसे रिलेटेड है, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रख के भी इनसे इसको अप्लाई करना पड़ता है। अब आ जाते हैं फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को इसके क्या फायदे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली चीज़ है टू वाइड स्प्रेड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर। अगर एक्सप्लॉइटेशन खत्म करना है कंज्यूमर का, तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। दूसरी चीज़ है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे हम हैं, हमारे लिए कोई एजेंसी कोई काम नहीं करती है, कोई या मान लो ट्रेड यूनियन वगैरह थोड़ी ना है हम लोगों को, आप किसी ट्रेड यूनियन से जुड़े या नहीं जुड़े, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपको स्टेट फोरम में जाके आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी जो शॉपकीपर है या कंपनी है नहीं सुन रही है तो उस कंडीशन में। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पर, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर को जानकारी नहीं होती, कंज्यूमर को जानकारी नहीं होती है, और इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक आपको राइट दिया गया है कंज्यूमर्स एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, राइट? थैंक यू। In this video, we are completing the consumer protection. Okay, remaining part will be completed in the next video. Thanks for watching.